और परमेश्वर सचमुच इस प्रभु दे दास के द्वारा ये मेरा आत्मिक पिता, हालेलुया। प्रभु दे दास मेरा आत्मिक पिता। एक दर्शन के द्वारा प्रभु ने मैनू ये बारे दर्शन दिखाया और मैं दास ने गल की ते दास ने बोलिया फटाफट आ जा, हालेलुया। और सेवकाई दे लई मसा कीता ते सचमुच उस तो पिछे जो सेवकाई की ते परमेश्वर की दया दे नाल और प्रभु दे दासां दे संजोग दे नाल और सचमुच बहुत वधिया परमेश्वर लोग आशीष पा रहे हैं, हालेलुया हालेलुया। असी थोड़ा जिहा समा विचों गवाइयां तो लवांगे, थोड़ा जिहा समा बस 1-2-4 गवाइयां सुनांगे। उस तो बाद असी जो वचन का समा है दास जी कोलों असी वचन सुनांगे, है ना। गवाही परमेश्वर के वचन च लिखिया है, जिन्नू भी चंगा कीता, लंगड़ा तुरिया, अन्ना वेख्या, कोढ़ी शुद्ध होया, मुर्दा जिंदा होया। हुण तक मैं बीमार रही हां ते मैं जदों प्रभु दे घर आउण लगी मैं हुण चंगी हो गई हां, हालेलुया। सीगा मेरे दवाइयां अलमारियां भरियां रहंदी सी कि आज खाली हालेलुया। मैंने बहुत दर्द होंदा सी, मैं चाय पींदा सी, बहुत दर्द होंदा सी। मैं जब प्रभु ने कबूल किया, मेरे दास को दास करवाई सी, मैं प्रार्थना करवाई सी, मैं उस लिए चंगा हो गया सी ते हुण मैं बहुत चंगा सी। अगे मैंने बहुत दर्द होंदा सी, मैं जिथे जांदा सी उत्थे दर्द होण लग पैंदा सी, मंजे ते बहुत लेटदा सी, मैं राती 12-12 बजे टीका लवांदा सी ते मैंने हो चंगा, हुण मैं प्रभु ने चंगा हालेलुया। बच के सी छोटे अंदर भरा दा रिश्ता प्रार्थना ते हुण ठीक हो गया, हालेलुया हालेलुया। मेरे ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਾਬੇ ਵੀ ਢੂੰਡੇ ਨੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆ ਛੋਟਾ ਹਾਥੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਵਿਚਾਰ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਦੇ ਫਿਰ ਪਾਸਟਰ ਕੋਲ ਦਵਾ ਕਰਾਈ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਪਾਸਟਰ ਕੋਲ ਦਵਾ ਕਰਾਈ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਕਲ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਕਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤਾਂ नौकरी करता सी, किसे दे साधन चलांदा सी, किसे दे साधन चलांदा सी। है उस तो पिछे जिवें ही ये दुआ बंदगी ते आन लग्या, मैनू रब ने एक दर्शन दिखाया ते इस एरिए दे विच आण दे विच पहला सेवकाई शुरू करन दे विच इस भाई दा दर्शन दिखाया, भाई ओनू जाके मिल, ओनू जाके मिल। इहदे नाल मिलिया, मेल कीता, इस भाई नू किहा भाई इस इलाके दे विच बंदगी करनी है दी ते पहला तेरा दर्शन दिखाया ते आपां बंदगी करनी कित्थे करिए ते भाई बोला पहला मेरे घर विच बंदगी। और जिवें ही दुआ बंदगी कीती तां भाई उस तो नाल जुड़िया, परमेश्वर दे नाल वधिया चलदा रहा। पहला किसे दे साधन चलांदा सी ते प्रभु के दुआ प्रार्थना तुसीं वेख। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਜ਼ਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਹੈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਔਰ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਚੱਲੀ ਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਪ ਵੀ, ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਇਹ ਦਾਸ ਝੂਠ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਦਾਸ ਅਸੀਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ। ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਗਲ ਤੂੰ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਨਾ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਵਿੱਚ ਪਾਗਲ ਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ, ਮੇਰੀਆਂ 2 ਨੂੰਹਾਂ ਨੇ, 2 ਪੋਤਰੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚਰਚ 'ਚ ਜਾਈਦਾ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਬੇਟੇ ਮੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਈਦਾ। ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, 12 ਸਾਲ ਮੈਂ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦਾ ਚੱਕਰ ਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਸਿਆਣਿਆਂ ਤੇ ਬਾਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਗਏ ਪਰ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ, ਜਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ
ਆਪਦੇ ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦਾ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਚੁਣ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੁਣ ਲੈਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਬੀਬੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਡੇਟ ਲਿਆ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਜਾਣਾ ਸੀ ਔਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਦਾਸ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੱਸਾ ਕਰਨਾ ਹੀ, ਵੱਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਤੇਲ ਨਾਲ ਮੱਸਾ ਕਰਨਾ ਹੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ आइए ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਦੇਾਂਗੇ ਔਰ ਵਚਨ ਸੁਣਨਾ। ਪਲੀਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਸੁਣਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ। शब्द गाई जाइए जिन्ने मर्जी भाव सारी रात नहीं खत्म होते, पर परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर की हजूरी दे विच तुहाडा सारे का स्वागत है। सो परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे मौका दिया, और पास्टर सज्जन का मैं धन्यवाद करता हूँ कि वो मुझे बुलाए ताकि मैं परमेश्वर के वचन से आपसे बातचीत करूँ। इस परिवार के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने अपनी जो खुशी के जाहिर किया परमेश्वर के लिए, और आज जो बंदगी इन्होंने रखाई है इसके लिए हम उनके परिवार के लिए, इस घराने के लिए भी धन्यवाद करते हैं। आप सबका धन्यवाद करते हैं कि आप लोग यहाँ पे बंदगी में आए। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर के वचन, ठीक है, परमेश्वर के वचन में अभी हम सुनेंगे। अगर सुनो बेटा ध्यान से, समझ नहीं आ रहे? समझ आ रहे? हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन का आदर करना है। किसका आदर करना है? ये वचन ही परमेश्वर है। आपके हाथ में बाइबिल है? किसके किसके हाथ में बाइबिल है? हाथ, हाँ, बाइबिल उठाओ, बाइबिल उठाओ, अपने ऐसे ऊंचा करो। जीसस, चलो मेरे साथ बोलो। स्वर्गीय पिता, यीशु के नाम से आपके चरणों में आते हैं। इस समय आपने वचन के द्वारा, अपने दास के द्वारा मुझसे बात करो। आज का जो वचन हो मेरे लिए हो, मेरी उन्नति के लिए हो, यीशु के नाम से, आमीन। अब जितने बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, बच्चे चुपचाप बैठे रहना, उठ के मत जाना, क्योंकि वचन परमेश्वर है। अगर आप उठ के जाते हो परमेश्वर का अनादर करते हो। समझ आ रहे? आप सब कोई भी उठ के नहीं जाना। अगर आप उठ के जाते हो, एक दूसरे को देखते हो, हंसते हो, मखौल करते हो, बोलते हैं ना पंजाबी में, मजाक करते हो, मजाक करते हो। बाहर जो पीछे पीछे जो बच्चे खड़े हो, जवान बच्चे, बैठ जाओ, हंसना नहीं। परमेश्वर को मजाक में मत लेना। ये परमेश्वर है, बाइबल में लिखा है, उसका मजाक मत उड़ाना। परमेश्वर बाइबल में, हिंदी बाइबल में लिखा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। पंजाबी में क्या लिखा है? मखौल च नहीं हटाया जाता। समझ आ रहे? अगर आप उसका आदर नहीं करना चाहते, अगर आप उसका आदर नहीं करते, उसका मजाक उड़ाते हो, याद रखना वो तुम्हारा मजाक दुनिया में उड़ा के रख देगा। हालेलुया। कोई बचा नहीं पाएगा। समझ आ रहा है? इसीलिए उससे डरो, उससे डरो, और उसके डर में, उसकी हाजुरी में बैठो। अगर उसका डर आपके अंदर नहीं है तो आप दुनिया में किसी से नहीं डरते। और जो व्यक्ति या रब का डर नहीं है, जिसके अंदर परमेश्वर का डर नहीं है, उसकी जिंदगी कभी भी ब्लेस नहीं होती। जब वो परमेश्वर से हंसता है, परमेश्वर उसे ऐसा बनाता है कि लोग उस पर हंसते हैं। आप क्या चाहते हो? कि परमेश्वर से आशीष पाना, या यहाँ से ऐसे बन के जाना कि लोग तुम्हें देखकर हंसे, तुम्हारा मजाक बनाए? क्या वजह बनना चाहते हो? लोग तुम्हें देखकर कहें ये परमेश्वर की बेटी है, ये परमेश्वर का बेटा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु की उपस्थिति में वचन जब खुलेगा, वचन खुलता है, बाइबल खुलती है, परमेश्वर खुलता है बात करने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर खुलता है बात करने के लिए। शांति से बैठ जाओ, चुपचाप बैठ जाओ, भूल जाओ सब कुछ, बस सुनो ध्यान से। आपको मेरी हिंदी समझ में नहीं आती, कोई बात नहीं, पर सुनो।
आपको मैं 10 बात बताऊंगा, 10 में से 2 बातें जरूर आपके दिमाग में बैठेंगी। प्रेरितों के काम 3 अध्याय, रसूलों के कर्तव्य 3 अध्याय, पढ़ो 1 से लेकर के 10 तक। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। पंजाबी में पढ़ने दो बेटा। ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੇਲੇ 30 ਪੈਰ ਹੈਕਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ हाँ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਜਮਾਂਦਰੂ ਲੰਗੜੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने के लिए कहाँ जा रहे हैं बेटा? बोलो मंदिर में जा रहे हैं। कहाँ पे जा रहे हैं? मंदिर में जा रहे हैं। पतरस और यूहन्ना मंदिर में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं बेटा? मंदिर में जा रहे हैं। क्या करने के लिए जाते हैं मंदिर में? बताओ। पतरस और यूहन्ना कौन है? प्रभु के चेले, जिसे हम आज के टाइम में क्या बोलते हैं? पास्टर है। ठीक है। पतरस और यूहन्ना प्रभु के दास मंदिर में जा रहे हैं। दास किस लिए जाएगा मंदिर पे? प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के भवन को मंदिर पंजाबी में हैकल कहा गया। ठीक है। और जब ये मंदिर में जा रहे हैं तो बाइबल में क्या लिखा है? एक जन्म के लंगड़े को, किसको लेकर आ रहे हैं? जन्म से लंगड़ा है वो, जन्म से लंगड़ा है, उसे लेकर आ रहे हैं। किस लिए आ रहे हैं लेके? कि उससे मंदिर के, पढ़ो बेटी आगे, ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੈਕਲ ਦੇ ਫਾਟਕ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਸਜਿੰਦਾ ਹੈ उससे मंदिर के फाटक के पास, और उस फाटक का नाम है सोना। क्या नाम है उसका? हिंदी बाइबल में लिखा सुंदर। क्या नाम है? सुंदर। समझ में आ रहा है? बोलो सुंदर। पड़ोसी को बोलो तू बहुत सुंदर है। तेरे नाल जो बैठा हूँ बोलते तू बहुत सुंदर है। बहनों बोलो एक दूसरे को, बोलो तू बहुत सुंदर है। हालेलुया। कहाँ पे बैठा रहे इसको? सोने नामक फाटक पे, सुंदर नामक फाटक पे। हालेलुया, हालेलुया। अभी सुनो ध्यान से। एक फाटक है जिसका नाम सुंदर है। क्या नाम है? और सुंदर नामक फाटक पे ला करके इस जन्म के लंगड़े को बैठाया जा रहा है। किस लिए बैठाया जा रहा है? पढ़ो बेटी आगे, किस लिए बैठाया जा रहा है? ਬਹਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਭਾਈ ਉਹ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਭਿੱਖਿਆ ਮੰਗੇ। हाँ, पढ़ो आगे। ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਨੂੰ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਿੱਖਿਆ ਮੰਗੀ। बस इससे किस लिए बैठाया जा रहा है? ताकि ये क्या मांगे? भीख मांगे। किस लिए बैठाया जा रहा है? भीख मांगे। जो आ रहे हैं मंदिर में प्रार्थना करने के लिए आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनसे भीख मांगने के लिए इसको सुंदर नामक फाटक पे बैठाया जा रहा है। अभी पतरस और यूहन्ना जो प्रभु के दास हैं, उनको भी ये देखा, जब देखने के बाद क्या सोच रहे हैं? सारे माइक बंद कर दो। क्या तो सोच रहा है? ये जो जा रहे हैं ना, इनके पास कुछ होगा तो मांगने के लिए, कुछ भीख मांगने के लिए उनकी तरफ क्या बढ़ाता है? हाथ बढ़ाता है। हालेलुया, हालेलुया। अब मुझे एक बात ये बताओ कि यहाँ पे इस फाटक का नाम, फाटक ही लिखा है पंजाबी बाइबल में, ठीक है। फाटक का नाम क्या है? क्या बताया मैं? सुंदर। क्या नाम है? अभी सुंदर नामक फाटक पे कौन बैठा है? लंगड़ा बैठा है। अब आप मुझे एक बात बताओ, सुंदर नाम उसका सुंदर है, लेकिन वहां पे लंगड़ा बैठा है, उसकी सुंदरता सही है? हमारी बहनें ऐसा करती हैं। छोटा बच्चा जब होता है, बहुत सुंदर बच्चा होता है ना, तो बच्चे को बड़ी बढ़िया नहलाती धुला करके उसके बाद क्या लगाती हैं? काजल। क्या लगाती हैं? काजल लगाने के बाद एक छोटा सा ऐसे उंगली में काजल करके यहाँ पे क्या कर देती है? लगाए बहनों? लगाए बेटा? क्यों लगाते हो यहाँ पे? इतना सुंदर बच्चा और आपने उस पे क्या लगा दिया? सारी सुंदरता में आपने क्या कर दिया? किसने बोला पानी फेर दिया? हालेलुया, बोले मसीह जी। इतना सुंदर बच्चा और आपने उसके काजल पूरा काला कर दिया, उसका मत्था पूरा काला कर दिया। किस लिए काला किए? नजर न लगे। अभी मुझे एक बात बताइए, सुंदर नामक फाटक पे एक लंगड़ा बैठा है, किस लिए बैठा है? फाटक को नजर न लगे। किस लिए बैठा है भाई? सुंदर तो है, सुनो, सुंदर तो है, लेकिन
सुंदरता उसकी बेकार है। क्यों बेकार है? क्योंकि एक लंगड़ा वहां पे बैठा है और वो लंगड़ा मजबूरी में बैठा है, खुशी से मजबूरी में बैठा वहां पे, आने जाने वालों से भीख मांग रहे हैं, अपनी लाचारियों के साथ बैठा है, अपनी समस्याओं के साथ बैठा है, अपनी तकलीफों के साथ बैठा है, अपनी चिंताओं के साथ बैठा है, अपनी बीमारी के साथ बैठा है, अपनी सारी टेंशन परेशानियों को लेकर, उलझनों को लेकर के यहाँ पे बैठा है। वो आने जाने वालों से क्या मांगता है? भीख मांग रहा है। बाइबल में लिखा है पतरस और यूहन्ना को जब देखा तो क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ दे दो, मुझे कुछ दो। लंगड़ा बैठा है। कौन बैठा है? क्या मांगता है? क्या मांगता है? कहाँ पे बैठा है? आप बाहर से कैसे दिख रहे हो? सुंदर दिख रहे हो, लेकिन अंदर कैसे हो? आपकी सुंदरता में, ध्यान से सुनो बेटा, आपकी सुंदरता में कोई लंगड़ापन तो नहीं है। आपकी सुंदरता में कोई लंगड़ापन तो नहीं है। आप बाहर से सुंदर दिखते होंगे, दिन भर में जाकर के 10 बार हमारे जवान बच्चे जो हंस रहे हैं ना पीछे, इन लोग दिन भर में गंगा देख कर आते हैं, है ना? बाल कोई बड़ा खड़ा कर रहा है, कोई टेढ़ा कर रहा है, कोई सुला रहा है, कोई सुंदर दिखते हैं। लेकिन सुनो मेरे बच्चों, जवान बच्चे सुनो, आपकी सुंदरता को ध्यान से देखो, कहीं आपकी सुंदरता में कोई लंगड़ापन तो नहीं है। अगर तुम्हारी सुंदरता में लंगड़ापन है तो सुंदरता बेकार है, वो सुंदरता कोई काम की नहीं है। उस लंगड़ेपन को दूर करो। वो लंगड़ापन क्या है? अगर आप सुंदर जगह में बैठे हो, मंदिर की जगह में बैठे हो, लेकिन लंगड़ी की दशा में बैठे हो, क्या है ये लंगड़ापन? आप अपने जीवन में लेकर के जब आप समस्याओं में चलते हो, तकलीफों में चलते हो, ये आपका लंगड़ापन है। आप अपनी टेंशन और चिंताओं को लेकर चलते हो, ये आपका लंगड़ापन है। आपके परिवार की चिंताओं को, समस्याओं को लेकर चलते हो, ये लंगड़ापन है। आपकी बीमारियां लंगड़ापन है, आपकी गरीबी लंगड़ापन है, आपकी हालेलुया श्राप लंगड़ापन है, आपके जीवन में जो शैतानी के बंधन है लंगड़ापन है, आपके अंदर भूत प्रेत का साया वो लंगड़ापन है, आपके जीवन की समस्याएं, तकलीफें सब लंगड़ापन है। और आप हो सकता है आकर यहाँ पे फाटक के पास बैठे हो, मंदिर के पास बैठे हो, प्रार्थना करने के लिए बैठे हो, अगर आज वो लंगड़ापन दूर नहीं हुआ तो तुम्हारे यहाँ बैठना बेकार है। कितने को मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आपका आज लंगड़ापन दूर नहीं हुआ तो आपका यहाँ पे बैठना बेकार है। आप यहाँ पे बैठे हो अपने लंगड़ेपन को दूर करने के लिए। आज परमेश्वर के आगे कहो, प्रभु मैं यहाँ से चंगा होकर जाऊंगा, मैं लंगड़ा हो सकता आया हूँगा, बीमारी में आया हूँगा, समस्या में आया हूँ, तकलीफ में आया हूँ, चिंताओं में आया हूँ, परेशानी में आया हूँ, अपने जीवन, अपने परिवार का बोझ लेकर आया हूँ, लेकिन आज यहाँ से जब जाऊंगा तो लंगड़ा नहीं जाऊंगा, यहाँ से छुटकारे को पाकर जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। आप अपने बाहरी जीवन में लंगड़ेपन में हो और आत्मिक जीवन में भी लंगड़ापन है। आत्मिक जीवन में लंगड़ापन। कई लोगों जो विश्वास करते हैं, वो सुनो ध्यान से, कई लोग जो विश्वास करते हैं उनका जीवन कैसा होता है? कुछ विश्वासी भाई बहन ऐसे होते हैं, सुबह से लेकर शाम तक प्रार्थना 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 प्रार्थना, और बाइबल नहीं पढ़ते। क्या नहीं पढ़ते? तो फिर ये क्या है भाई? प्रार्थना तो कर रहा है बेटा, पर एक पैर में खड़ा है, तू लंगड़ा है। कई लोग सिर्फ प्रार्थना नहीं करते, सिर्फ बाइबल 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 पढ़ते रहेंगे। प्रार्थना करने को बोल, प्रार्थना नहीं होती, बाइबल पढ़ लूंगा माड़ा मोटा, वो भी क्या है? सिर्फ प्रार्थना से काम चलेगा? ये सिर्फ बाइबल से काम चलेगा? चला लो, चलता है। लंगड़े हो आत्मिक जीवन में। अगर आप अपनी प्रार्थना और अपनी बाइबल पढ़ने की दोनों को साथ में लेकर नहीं चलते तो लंगड़े हो। सुनो आज ध्यान से, अगर आप बाइबल नहीं पढ़ सकते, मेरी बहनों अगर आप बाइबल नहीं पढ़ सकते, मेरे भाइयों अगर आप बाइबल नहीं पढ़ सकते, आज आपके घर में, सबके घर पे मोबाइल है, आप उसमें ऑडियो बाइबल ढूंढो और वो आपको बोल बोल कर सुनाएगा बाइबल, उसे सुनो। हालेलुया। आपकी प्रार्थना का जीवन और आपकी बाइबल का जीवन दोनों साथ होना चाहिए, और जब दोनों साथ होगा आप दोनों पैरों से खड़े होंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
लंगड़ा जीवन परमेश्वर को पसंद नहीं है, याद रखना। लंगड़ा जीवन परमेश्वर को पसंद नहीं है। आप अगर लंगड़ेमय जीवन को जीना चाहते हैं, सुंदर नामक फाटक पे बैठे ही रह जाओगे, लोगों को कहने की लायक बस बन जाओगे। प्रार्थना तो मैं बहुत करता हूँ, बाइबल बड़ी पढ़ता हूँ, मैं चर्च भी बहुत जाता हूँ, समस्या नहीं जा रही। क्या नहीं जा रही? तकलीफें, प्रॉब्लम्स नहीं जा रही। भूत घर नहीं छोड़ रहे। मेरे घर में पूरा खोद के बैठ गया वहां पे जाके। क्यों नहीं जा रहा बेटा? कहीं तो लंगड़ापन है, कहीं तो कई लोग क्या करते हैं, बहुत कमाते हैं, पैसा आया गया, पैसा आया गया, समझ नहीं आ रहा पैसा इतना आ रहा है तो जा क्यों रहा है? बोलो कहीं तो लंगड़ापन है। समझ आ रही है? कहीं तो लंगड़ापन, कहीं पे तो लंगड़े बैठे हो तुम। इस लंगड़े को दूर करने के लिए पतरस और यूहन्ना मंदिर पर आ गए। इस लंगड़ेपन को दूर करने के लिए पास्टर संतोष, पास्टर सज्जन यहाँ पे बंदगी कर रहा है। समझ आ रहा है? इस लंगड़ेपन को दूर करने के लिए पतरस और यूहन्ना आए, 2 दास आए, और आपके जीवन के लंगड़ेपन को दूर करने के लिए परमेश्वर ने फिर दोनों दासों को भेजा है। कौन कौन अपने लंगड़ेपन से छुटकारा पाना चाहता है? अपने लंगड़ेपन से चंगा होना चाहते हो? चंगे होना चाहते हो? जीसस, हालेलुया। अभी पतरस और यूहन्ना कुछ पाने के लिए, कुछ देखो, कुछ पतरस यूहन्ना की तरफ, ये जो लंगड़ा है ना, जो लंगड़ा बैठा था, पतरस यूहन्ना जो प्रभु के दास हैं, उनकी तरफ हाथ बढ़ाकर देख रहा है। क्या कर रहा है? कुछ पाना चाहता है। क्या पाना चाह रहा है? पढ़ो बेटी थोड़ा सा आगे। तदों पतरस ने यूहन्ना दे नाल उस ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਸਾਡੀ ਵੱਲ ਵੇਖ। 5 वचन पढ़ो। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਲੱਭਣ ਦੀ ਆਸਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ। रुको, कुछ पाने की आस में, कुछ लबन ना, कुछ पाने के लिए उनकी तरफ क्या किया? उसने ध्यान दिया, अपने हाथ को बढ़ाया। भिखारी क्या करता है? या हाथ में कटोरा होगा तो बढ़ाया होगा। कटोरा देखा भिखारी के हाथ में? हालेलुया। इसके हाथ में कुछ रहा होगा, कुछ पाने के लिए अपने हाथ का कटोरा बढ़ाया होगा। अभी बाइबल में लिखा हुआ है, एक बात लिखी हुई है, याकूब निकालो बेटा, यहाँ पे हाथ रखना, याकूब 4:3 पढ़ो। की आस रखते हुए ये पतरस और यूहन्ना प्रभु के दास की तरफ क्या बढ़ा रहे हैं? हाथ बढ़ा रहे हैं। आप हाथ बढ़ाते हो? जब आपको प्रभु के दास बोलते हैं हाथ उठा करो, हाथ ऊंचा करो, परमेश्वर की महिमा करो, आराधना करो, करते हो? ऊंचा करते हो? करते कि नहीं करते? हालेलुया। किस लिए ऊंचा करते हो हाथ? कुछ पाने के लिए, कुछ पाने के लिए। अगर आप परमेश्वर की ओर हाथ बढ़ाते हो तो परमेश्वर कभी भी आपके हाथों को खाली वापस नहीं लौटाएगा। आपके हाथ खाली नीचे नहीं आएंगे, पर आपके हाथ परमेश्वर की आशीषों के साथ आपके पास आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हाँ पढ़ो बेटे। ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਪਰ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ। बाइबल में लिखा तुसी मंगते हो पर लभदा नहीं। आगे, क्यों जो बदनीति नाल मांगते हो। हाँ, गलत इच्छा से मांग रहे हो बेटा। क्यों नहीं मिल रहा है? बहुत प्रार्थना किए, बहुत प्रार्थना किए, मंगा नहीं, चर्च में गए, मंगा नहीं, प्रार्थना कराए पास्टर से, मिला नहीं, मिला नहीं, मिला नहीं। क्यों नहीं मिला? बाइबल में लिखा तू मांगते हो, गलत इच्छा से मांग रहे हो, गलत सोच के साथ मांग रहे हो, गलत विचारों के साथ मांग रहे हो। आपका मांगने का तरीका गलत है। ये लंगड़ा फाटक पे बैठा है, सुंदर नामक जगह पे बैठा है, इसलिए बैठा है गलत इच्छा से मांग रहे हैं। परमेश्वर के दासों से गलत इच्छा से किस, आगे बढ़ो बेटा। भाई अपने भोग विलासा भी उड़ा दो। इसलिए मांग रहे हो कि कैसे उड़ा दो? भोग विलास में उड़ा दो। अभी यहाँ पे आपको क्या लगता है ये भिखारी पतरस और यूहन्ना से क्या मांग रहा होगा? पैसा ना। पैसा कैसे उड़ जाता है? ऐसे ही भोग विलास में इधर उधर में काम उड़ जाता है कि नहीं उड़ जाता है? हालेलुया, उड़ता है ना। अगर ये नहीं उड़ाएगा, सुनो, अगर ये लंगड़ा नहीं उड़ाएगा तो जो इसको बैठा रहे हैं उन लोग उड़ा देंगे। अगर ये नहीं उड़ाएगा तो इसके परिवार में कोई तो होगा जो इसको लेकर के चले जाते हैं, उन लोग उसका पैसा उड़ा देंगे। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है पतरस यूहन्ना की तरफ तो वो देखे पाने के लिए,
लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है वो परमेश्वर तुम्हारे मन से बड़ा है और वो आपको देगा अपनी इच्छा के अनुसार। कैसे देगा? आपने अपनी इच्छा से मांगा, आप प्रार्थना करते हो अपनी इच्छा से करते हो ना, लेकिन वो आपकी प्रार्थना का उत्तर अपनी इच्छा से क्या करता है? समझ आ रहे बेटा? वो आपकी प्रार्थना का जवाब अपनी इच्छा से देता है। हालेलुया, हालेलुया। अभी पतरस और यूहन्ना उसको क्या बोल रहे हैं? पढ़ो बेटा आगे 6 वचन पढ़ो। 3:6 रसूलुल्लाह दे करतब 3:6। पर पतरस ने आख्या सोना चांदी ता मेरे कोल है नहीं। क्या नहीं है मेरे पास? ये क्या मांग रहा था? पैसा दे दो। पतरस से यूहन्ना कहते हैं सोना चांदी रुपए पैसा हमारे पास, जो तू मांग रहा है बेटा वो मेरे पास नहीं है। तू अपनी इच्छा से मांगा है, हम अपनी इच्छा से देंगे। आपने अपनी इच्छा से मांगा, परमेश्वर अपनी इच्छा से देगा। सुनो एक कहानी बताता हूं मैं आपको, ठीक है? उसके सुनोगे कहानी? हालेलुया। किसी देश में एक राजा था। कौन था? राजा लोग क्या करते थे बेटा? तलवार लेना और उसको चलाना, प्रैक्टिस करते थे ना, युद्ध के लिए तैयारी करते थे, तो करते थे ना। तो राजा उस नगर का जो राजा था, वो राजा तलवार से ऐसे प्रैक्टिस कर रहा है, युद्ध में लड़ाई करने के लिए तैयारी कर रहा है। तैयारी करते करते उसकी जो तलवार है अंगूठे में लग जाती है। किसमें लगी? अंगूठा है ना सबके पास? अंगूठे में लग गई। अब अंगूठा कट गया। क्या हो गया? अंगूठा कट गया। उसका जो मंत्री था, मंत्री समझ रहे? जो राजा के करीब होता है, ठीक है? अभी वो बोलता है जो हुआ अच्छा हो गया, प्रभु जो करता है अच्छे के लिए करता है। मंत्री क्या बोल रहे हैं? प्रभु जो करता है। राजा को बड़ा गुस्सा आया। राजा बोला हे मंत्री, तू ये क्या बोल रहा है? मेरा अंगूठा कट गया और तू बोल रहा है अच्छा हो गया। ये मंत्री ये बिल्कुल मुझे मरवा के रहेगा। ऐसे करो, ये मेरे से जलता है, चिढ़ता है, इसलिए ऐसा बोल रहा है। इस मंत्री को उठाओ, जेल में डालो। कहाँ डाल दो? जेल। अभी मंत्री बोलते चिल्लाते जा रहे हैं प्रभु जो करता है अच्छे के लिए करता है। प्रभु जो करता है, बोलो बेटा, प्रभु जो करता है। अरे राजा का अंगूठा करके अच्छा था, आपके साथ कुछ बुरा हो जाए तो अच्छा होता है क्या? सुनो, अगर इसमें भी कुछ अच्छाई है, सुनोगे कहानी ध्यान से तो फिर पता चलेगा। अभी ये चिल्ला के बोलता हुआ जेल में जा रहा है, प्रभु जो करता अच्छे के लिए करता है। राजा बोलता है ये पागल हो गया है, एक तो मैं इसको जेल में डाल रहा हूँ और ये बोल रहे हैं अच्छे के लिए। अभी राजा लोग क्या करते थे बेटा? शिकारी होते थे। क्या होते थे राजा लोग? शिकार करने जाते थे, ठीक है? जंगलों में जाना, शिकार करना उनका काम होता था, शिकार लेकर आना। तो राजा शिकार करने के लिए एक बार जंगल में गया, उसके जो सेना थी वो भी साथ में गई। राजा शिकार के पीछे चलते चलते जंगल में इतना घुस गया, इतना भी अंदर चला गया कि सैनिक पीछे रह गए। सैनिक, बोलो बेटा, सैनिक कैसे रह गए? सैनिक पीछे रह गए। राजा अंदर चला गया, जंगल के अंदर चला गया, सैनिक और पीछे रह गए। राजा और जंगल के बीच में घुस गया। अब जंगल के बीच में जंगली इंसान होते हैं, सुना है आप लोगों ने? जंगली इंसान होते हैं, उन लोग ऐसे पत्ता उत्ता लपेट के रखते हैं, कपड़ा उपड़ा नहीं होता उनके पास, कपड़ा लपेट के रखना, काले काले, नहाए धोए नहीं, ऐसे बाल ऐसे रहना, देखे हो? अब उन लोग कर रहे हैं। अब वो लोग राजा को जब पाए तो राजा को पाते ही बोल रहे हैं वो मजा आ गया, आज हमें एक बकरा मिल गया। हालेलुया। अब वो जंगली बंदे सब राजा को पकड़ लिए। राजा चल भूल, अब वो बड़े खुश हो गए। राजा बेचारा घबरा गया, अब क्या होगा मेरा? जंगली बंदे उसको पकड़ लिए, उसका सब कुछ जो भी उसके हाथ में था सब फेंक फाक के उसको ले गए, पकड़ के मारते चपेड़े। और वो चिल्ला रहे हुला लाला हुला लाला हुला लाला, बंदा मिल गया, हम इसको अपने देवी देवता के लिए बलि कर देंगे, इसको हुला लाला हुला लाला। हालेलुया, हालेलुया। अभी जितना ये हुला लाला कर रहे हैं, राजा का दिल का धड़कन और राजा के दिल की धड़कन और बढ़ रही है। हालेलुया, हालेलुया। राजा बेचारा पसीना पसीना, जैसे ही सरदार के पास पहुंचा, जंगलों का जो लोग होते हैं ना, उनका सरदार भी होता है। कौन होता है बेटा? सरदार। अभी सरदार के पास राजा को लेकर जाया गया। राजा देखो, इस राजा को, वो उसको अपने सरदार को बोल रहे हैं, राजा हमने इसको पकड़ के लाए, ये बहुत सुंदर आदमी है, देखो कितना बढ़िया चमक रहा है। राजा चमकेगा तो सही। राजा
अभी उन लोग जो हुल्ला लाला कर रहे हैं, बोले राजा ये क्या सोना चमक चमक वाला पहन रखा है, उतारो उतारो उतारो, ये उतारो वो उतारो। अभी उनका जो मंत्री वो होता है ना सरदार, वो बोलता है इसको जल्दी करो, तैयार करो, हम इसको अपनी देवी के लिए क्या करेंगे, समझ आ रहे बेटा, क्या कर देंगे हम इसको, बलि कर देंगे, जल्दी करो इसको, तैयार करो इसको, सब कुछ उसका कपड़ा उतारेंगे, ये करना है वो करना है। अभी क्या कर रहा है सुनो ध्यान से, उन लोगों में एक नियम होता है, अगर किसी के शरीर में कुछ नुक्स होगा तो उसको बलि नहीं करते, समझ आ रहे हैं? अगर शरीर में कोई नुक्स होगा तो बलि नहीं करेंगे उसको। तो अभी सब कुछ उसका कपड़ा उपड़ा उतार दिया, उसका सोना चांदी सब रख लिया उन लोगों ने। अभी चेक करते करते, शरीर चेक करते करते क्या दिख रहा है, एक अंगूठा। अंगूठा तो नहीं है, अंगूठा नहीं है। अभी इन लोग बोल रहे सरदार क्या हुआ, अंगूठा नहीं है, ये बलि करने के लायक नहीं है। हालेलुया, ये बलि करने के लायक नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। राजा इसका अंगूठा नहीं है, ये बलि करने के लायक है। वो सरदार बड़ा गुस्से में आ गया, अरे यार आज तो हम सोचे थे मजा आ जाता है, पर बेकार कर दिया सारे, इसको मार चप्पड़े भगा यहाँ से। अब इसको मार के 2-4 चपेड़े डंडा डंडा मार के भगा दिए। राजा कपड़ा उपड़ा तो वैसे उतार लिए थे, अब भाग रहा है वो, दौड़ते दौड़ते आया पहले अपने राजभवन में, बोलता है उस मंत्री को बुलाओ जो बोल रहा था जो होता है अच्छे के लिए होता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अभी वो मंत्री को बुलाया गया, किसको बुलाया गया बेटा, राजा अपनी गद्दी पे बैठा, मंत्री को बोल रहा है, मंत्री भाई मुझे माफ कर, आप बजाने नहीं उसको, रुको। हालेलुया, बोलता है माफ कर मुझे, क्या कर मुझे, मुझे माफ कर, मैं गलती से तुझे जेल में डाल दिया, सच में तू बोल रहा था जो होता है अच्छे के लिए होता, अगर तू उस समय मेरा उंगली नहीं कटता तो आज मेरा क्या कटना था, एक उंगली कटने से जिंदगी बच गई। समझ आ रहा है बेटा, क्या बच गई। अभी मंत्री क्या बोल रहा है, सुनो ध्यान से, राजा ये आप माफी मत मांगो, माफी मत मांग, क्योंकि जो तूने मुझे जेल में डाला ये अच्छे के लिए था। किसके लिए था, अगर तू मुझे जेल में नहीं डालता तो मैं तो तेरा मंत्री, तेरे को तो छोड़ नहीं सकता था, तेरे साथ जाता, और तू अंगूठा के वजह से बच जाता और मैं हुला लाला हो जाता। हालेलुया, मैं तू अंगूठे के वजह से बच जाता और मैं क्या हो जाता। तो प्रभु जो करता है, हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। राजा तू क्या सोच रहा है, मेरा अंगूठा कट गया, अरे राजा अंगूठा परमेश्वर ने तेरा इसलिए काटा कि तेरा गर्दन कटने से बच जाए। अगर तुम्हारे जीवन में कोई कष्ट आ रहा है, कोई दुख आ रहा है, कोई परेशानियां परमेश्वर भेज रहा है, तो उसको कोसो मत, उसे ग्रहण करो, क्योंकि वो तुम्हारी अच्छाई के लिए है, वो तुम्हारी बुराई के लिए नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। राजा बोल रहा है मेरा हाथ क्यों कट गया, परमेश्वर ने मेरा हाथ कटने दे दिया, और ये मंत्री बोल रहा है जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसको भी जेल में डालो। सब कुछ उसके नियंत्रण में चल रहा था, वो राजा को बचाना चाहता था इसलिए हाथ उंगली कटने दिया, और मंत्री को बचाना चाहता था इसलिए जेल में। हालेलुया, आपके जीवन को परमेश्वर बचाना चाहता है, कुछ तो परमेश्वर करना चाहता है। अगर परमेश्वर आपके जीवन में कुछ करना चाहता है तो उसे करने के लिए, कुछ चमत्कार करने के लिए परमेश्वर आपको दिखाएगा कुछ ना कुछ। चाहते हैं वो अपनी मर्जी से करता है। हालेलुया, लंगड़ा भिखारी अपनी इच्छा से मांग रहा है, पैसा दे दो। पतरस यूहन्ना कहते हैं पैसा सोना चांदी जो तू अपनी इच्छा से मांग रहा है, तेरे को तेरी इच्छा से नहीं मिलेगी, किसकी इच्छा से मिलेगी। पतरस यूहन्ना कहते हैं हमारे पास जो है हम वो तुझे देंगे। तुम अपनी इच्छा से चाहते हो, तुम अपनी मर्जी से चाहते हो, वो नहीं देगा। बाइबल में लिखा है वो नहीं देता। क्यों नहीं देता, ताकि तुम भोग विलास में उड़ा दो, वो खत्म हो जाएगा। परमेश्वर वो चीज नहीं देना चाहता जो तुम्हारी इच्छा के
अनुसारे और उड़ जाए। परमेश्वर वो देना चाहता है जो आप पर ठहर जाए और उड़े ना। हालेलुया। हालेलुया। पढ़ेंगे आगे बेटी, पढ़ेंगे 7 वचन। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹਦਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾਇਆ। अभी हमारी इच्छा क्या है? 6 वचन पढ़ो फिर से। पतरस यूहन्ना क्या करते हैं बेटा, ध्यान से सुनो, ठीक है? हाँ। ਪਰ ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, हाँ। ਪਰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸੋ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। हाँ, सोना चांदी हमारे पास ਹੈ ਨਹੀਂ, है नहीं। आगे, ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਸੋ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। जो कुछ है वो मैं तुझे दूंगा। क्या है उनके पास? पढ़ो आगे। ਯਿਸੂ ਨਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਤੁਰ ਫਿਰ। यीशु मसीह के नाम से क्या हो? क्या है हमारे पास? यीशु नासरी है। बोलो क्या है? यीशु नासरी है। यीशु नासरी हमारे पास है और हम तुझे कहते हैं यीशु मसीह के नाम से उठ और चल फिर। हालेलुया, हालेलुया। अरे अंदर भिखारी, तुझे कुछ पैसा मिल जाता तू कब तक खाता? 1 दिन खाता, 2 दिन खाता, 3 दिन खाता, लेकिन फिर भी तो भीख मांगने जाता। लेकिन परमेश्वर ने अपने दास में होकर तुझे वो चीजें दे दिया जो इस संसार नहीं दे सकता। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने तुझे वो चीज दे दिया कि फिर तू लंगड़ा नहीं रहेगा, फिर तू लाचार नहीं रहेगा, फिर तू समस्याओं में नहीं रहेगा, फिर कोई तुझे उठा कर नहीं लाएगा, फिर तो यहाँ पे बैठा नहीं रहेगा। परमेश्वर तुझे वो दे रहा है कि तेरी स्थिति, तेरी जगह से उठाकर खड़ा कर रहा है। बाइबल में लिखा है जो हम यीशु मसीह के नाम से तुझे देते हैं, यीशु नासरी के नाम से उठ और चल फिर। पैसा बड़ा था या चंगाई? पैसा कब तक खाता, लेकिन चंगाई जो मिल गई, अब ये चल रहा है, फिर रहा है, कमाएगा, खुद खाएगा और अपने बच्चों को भी क्या करेगा। हालेलुया। तो ये है परमेश्वर की इच्छा। तुम अपने लिए मांगते हो और वो देता है तुम्हारे द्वारा सबके लिए, आपके पूरे परिवार के लिए, आपके पूरे घराने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। लंगड़ा अब क्या हो गया? आगे पढ़ो बेटी, आगे पढ़ो। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹਦਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾਇਆ। और बाइबल में लिखा है पतरस यूहन्ना ने उसका हाथ पकड़ा और उठाया, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ और ਗਿੱਟੇ तकड़े हो गए और बाइबल में लिखा उसके पैर पूरी रीति से ठीक हो गए। हाँ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੁੱਦ ਕੇ ਉੱਠ खड़ा होया और बाइबल में लिखा वो खड़ा हो गया और तुरन लगा और चलने लग गया। हालेलुया, हालेलुया। चलने लग गया। हालेलुया। आगे पढ़ो। और तुरदा ਅਤੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। बस चलता फिरता कूदता परमेश्वर के भवन में गया, परमेश्वर की बड़ाई करने के लिए, परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए, परमेश्वर की वर्शिप करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। किससे उठा ये बाहर? बोलो अपने लंगड़ेपन से उठ गया। अब ये भीख मांगेगा? अब इसके बच्चे भूखे रहेंगे? इसका परिवार में कोई दुखी होगा? इसको उठा के रोज लेकर, 2 बंदे जो पकड़ पकड़ के उठा के लेकर रखते थे, उन लोग पसीना बहाते थे, उन लोग बड़े उठाते उठाते भी बोलते होंगे यार ये रोज इस पे मत्था मारना पड़ता है। परमेश्वर देखो कैसे इसकी हालात बदल दी है। बदला कि नहीं? परमेश्वर इसकी हालात क्या करिए बेटा? बदल दिया। हालेलुया, हालेलुया। आपकी स्थितियां बदल जाएंगी, आपके हालात बदल जाएंगे, आपका लंगड़ापन चला जाएगा। आप बैठे नहीं रहोगे एक जगह, आप परेशानियों में नहीं बैठे रहोगे, आप तकलीफों में नहीं बैठे रहोगे, आप अपनी बीमारियों में नहीं बैठे रहोगे, अपनी समस्याओं में नहीं बैठे रहोगे। आज अभी इसी समय आप उठोगे, उठोगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आप अपनी गरीबी से उठोगे यीशु मसीह के नाम से, अपनी श्रापों से उठोगे यीशु मसीह के नाम से। आप अपनी, हालेलुया, जो भी आपकी परेशानियां दिक्कतें हैं, हर एक चीजों से परमेश्वर आपको उठाना चाहता है। और जब आप उठोगे तो ऐसे उठोगे कि आपको कोई खड़ा होने से रोक नहीं पाएगा। हालेलुया। फिर आप गरीबी में पड़े नहीं रहोगे, आप श्रापों में पड़े नहीं रहोगे, आप कर्जे में पड़े नहीं रहोगे, आप पूरी रीति से, हालेलुया, हालेलुया, पापों और गुनाहों में पड़े नहीं रहोगे, आप नरक के लिए बैठे नहीं रहोगे। पर अब आप खड़े हो रहे हो, चलने के लिए खड़े हो रहे हो, परमेश्वर की आराधना करने के लिए खड़े हो रहे हो।
यहूदा निकालो बेटा, यहूदा उसका 1 का 20 वचन पढ़ो। प्रकाशित वाक्य से पहले है यहूदा, ठीक है? एक पढ़ना होगा बस। यहूदा 1 का 20 वचन बस पढ़ो, जल्दी पढ़ो तो समाप्त करूंगा बस। हालेलुया। समझ में आ रहा है बेटा? कहाँ गया ये? बोलो परमेश्वर के भवन में गया। कहाँ गया? कहाँ पे गया? और परमेश्वर के भवन में जाकर ये परमेश्वर की वर्शिप कर रहा है। परमेश्वर की वर्शिप कर रहा है। कैसे परमेश्वर की वर्शिप करना है सुनो ध्यान से। उसके बाद हम एक गीत भजन गाएंगे और हम वर्शिप करेंगे और उसके बाद में बस समाप्त करेंगे, है ना? पढ़ो 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 पढ़ो। 1 का 20। हाँ। पर तुसी हे प्यारे हो अपने आप ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਤਮ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇਚਾ ਉਤੇ ਉਸਾਰੀ ਜਾਓ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। बस किस में प्रार्थना करना है? जोर से बोलो, किस में प्रार्थना करना है? किस में प्रार्थना करना है? जोर से बोलो बेटा, किस में प्रार्थना करना है? अब ये लंगड़ा जब चंगा होके कहाँ गया? मंदिर में गया। किस लिए गया? पवित्र आत्मा में प्रार्थना करने के लिए। पवित्र आत्मा में आप जब यहाँ पे अभी प्रार्थना करेंगे, आप शरीर में प्रार्थना मत करना। अगर आप शरीर में प्रार्थना करोगे कुछ नहीं पाओगे। अब आपको खड़ा होना है और आत्मा में प्रार्थना करना है। वह आत्मा की प्रार्थना आपको चलाएगी। आप हो सकता है बाइबल का भी आप हो, प्रार्थना भी आप हो, खड़े हो, लेकिन जब पवित्र आत्मा आप पर आएगा तब आप चलोगे। हालेलुया, हालेलुया। दोनों चीजें होना चाहिए, आपकी प्रार्थना भी और आपका बाइबल पढ़ना भी और उस पे चलना भी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपके लंगड़ेपन से आपको हटाएगा, आपके लंगड़ेपन से आपको हटा देगा। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का मेरे ना हाथ पैर और ना मुड़ जाते थे और ना मुझे दिखना बिल्कुल बंद हो गया था। फिर मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर बोले ये सोचती है, इस कारण इसकी होता है। कोई कहता कहीं पर ही जाओ, कोई कहता कहीं पर ही जाओ। फिर मैं ना चर्च आई, एंकल ने मेरे लिए प्रार्थना की और उसके बाद कभी भी मेरे हाथ पैर नहीं मुड़े और अब मुझको पूरी तरह से साफ दिखता है। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और एंकल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी गैस एजेंसी है तो मेरा मुझे दोबारा गोदाम बनाने के लिए जमीन की जरूरत थी। 1 बीघा जमीन की कुछ मजबूरियों की वजह से मुझे गोदाम शिफ्ट करना था दूसरी जगह। पिछले 1 साल से मैं गोदाम के लिए जगह देख रहा था, लेकिन लोगों को जब कोई मजबूरी होती है तो पैसे ज्यादा मांगते। कोई मेरे से 20 लाख मांग रहा था, कोई 10 लाख, कोई 15 लाख। तो मैं काफी परेशान हो गया। टाइम कम रह गया था क्योंकि जून तक मेरे को गोदाम बनाना था। तो मैं आया, मैंने पास्टर जी को मेरी समस्या बताई। पास्टर जी ये समस्या है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर देता हूँ। तो उन्होंने प्रार्थना की। उसके 3 दिन बाद जब मैं वहाँ एजेंसी गया तो वहाँ मेरे पास घर पे कुछ चल के आ गया कि मेरे को 1 बीघा जमीन बेचनी है। मैंने कहा रेट बताओ, और रेट भी उसने वो बताया जो मैं मतलब आशा नहीं कर सकता था कि इतना सस्ता दे देगा, और बिल्कुल हाईवे पर दे दिया। मेरे परमेश्वर ने मेरा साथ दिया, फायदा किया। उसका भगवान को जाने इसको क्या मजबूरी थी, लेकिन मैं पास्टर जी का धन्यवाद देता हूँ कि वो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हमारी कामना करते हैं। सभी को जय मसीह।